Hello students, welcome in physics class. There is a topic inelastic collision in one dimension in chapter work, energy and power. What are the characteristics of inelastic collision? First, total energy is conserved. Second, total kinetic energy is not conserved of system, but some amount of kinetic energy is lost during collision. It means total kinetic energy before collision is not equal to total kinetic energy after collision of system. That is, total kinetic energy before collision is little more than total kinetic energy after collision. Okay, it means some amount of kinetic energy is lost during inelastic collision. Okay. Another characteristics of inelastic collision is total momentum is conserved. Total momentum means we have considered two bodies whose masses are m1, m2 and their initial velocities u1 and u2 before collision and after collision becomes v1 and v2. So then momentum of first body before collision is m1 u1 and momentum of second body before collision is m2 u2. So then total momentum before collision is m1 u1 plus m2 u2 and total momentum after collision is m1 v1 plus m2 v2. That is, in inelastic collision total momentum remains same, that is constant or conserved. Another characteristics of inelastic collision is coefficient of restitution for every type of collision is in between 0 to 1. Okay, and for perfect inelastic collision coefficient of restitution E is equal to 0, and in previous video it has already discussed that coefficient of restitution for perfect elastic collision is 1, but coefficient of restitution for inelastic collision lies between 0 and 1. Okay. Another characteristics of inelastic collision is forces involved during inelastic collision may be conservative or non-conservative. My dear students, now we will discuss about perfect inelastic collision. Okay, and we will find out the conditions and characteristics for perfect inelastic collision. My dear students, we know that in perfect inelastic collision there is a loss of kinetic energy during inelastic collision. So यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया है कि दो बॉडीज हैं जिनके मासेस m1 और m2 है, सेकेंड बॉडी रेस्ट में है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 जो है 0 है, और जब इनका परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे से इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, दोनों जो है एक दूसरे से स्टिक हो जा रहे हैं, और स्टिक होने के बाद इसका मतलब है कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, कंबाइंड होगी, और उस वेलोसिटी को हमने v कंसीडर किया हुआ है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आप कि जो हम जानते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन है वो ये है, पहला कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो इसलिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, बट वी नो दैट initial velocity of second body is 0. Okay, and both bodies will move
on sticking with combined velocity, that is v. So then m1 u1 is equal to m1 plus m2 into v. V is the combined velocity of both bodies after collision. Okay, so then from this equation v is equal to m1 u1 upon m1 plus m2. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकी काइनेटिक एनर्जी की. तो माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा टोटल, वो कितना होगा, दोनों बॉडी के काइनेटिक एनर्जीज के इक्वल होगा. और हम देख रहे हैं कि जो सेकेंड बॉडी है वो रेस्ट में है, इसलिए यहाँ पर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर कोलिजन वो क्या होगा, 1/2 m1 u1 स्क्वायर होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, और वो कितना होगा. देखिए दोनों का कंबाइंड जो मास है वो m1 प्लस m2 है, और कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है, v है. तो 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर हो गया क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. और यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हो कि जो v की वैल्यू है, कंबाइंड वेलोसिटी है, वो m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 है. तो इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे. तो यहाँ रखने के बाद हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आ रहा है वो इतना आ रहा है 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2. दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन 1/2 m1 u1 स्क्वायर है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 आ रहा है. ओके, तो अब हमें ये देखना है कि जो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, क्या काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है या नहीं होता है. तो इससे हमें कैसे पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है. इसको हमें पता करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे, और अगर ये कोई वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन. तो हम क्योंकि परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के लिए लेके चल रहे हैं, तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो हम फाइंड करने जा रहे हैं. तो देखिए यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से देखिए हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 m1 u1 स्क्वायर है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 है. ठीक है, अब यहाँ से हम LCM ले लेते हैं. तो LCM लेने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से 2m1 प्लस m2 अपॉन, और इसके साथ ये जो है देखिए m1 u1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर. ओके, अब इसको हम जब सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है. देखिए m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस m2. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, इतनी आ रही है. देखिए m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस m2, और ये क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम इसको आगे यहाँ पर लेके आ रहे हैं, उठा के ला रहे हैं. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, जिससे हम डेल्टा के इसे अगर रिप्रेजेंट कर लें तो ये आ रहा है, देखिएगा m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2m1 प्लस m2. अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कैसे कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है. देखिए m1 m2 जो दोनों बॉडीज के मासेस हैं वो मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है. और फिर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये क्या है कि u1 अगर मान लेते हैं, अगर हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग या रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कि u1 नेगेटिव है,
तब भी यहाँ पर U1 को स्क्वायर जब करोगे, वैल्यू रख के स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये हमें बता रहा है कि ये जो हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और इतना आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ड्यूरिंग परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और कितना हो रहा है, इतना हो रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के U1 इक्वल टू m1 m2 U1 स्क्वायर अपॉन 2 m1 m2।